Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today is our eighth lecture for science. So, as you know, we have studied chapter number 9, heat and energy. I have discussed the whole chapter, I have explained to you. I have shared the notes of the question answers from the exercise. The worksheet which I have shared with you, I think you have completed it, but I thought that I would make a video for that, and I am making video for the answers of the worksheet. So, as you know, the first question is fill in the blanks. I made this worksheet number 1. Heat is a degree of hotness. In scientific term, heat is a type of energy found in a body that has a high temperature than its surroundings. When an object is heated, its molecules gain energy, ये blank के अंदर आएगा gain energy, and they start moving faster as uh, they vibrate. They bump into each other at a high rate इधर आएगा, and push the molecules जो होते हैं ये atoms in front of them. As this movement continues, heat travels from one end of the object to the other end. ये आप खुद भी कर सकते थे, ये प्रॉब्लम नहीं था इतना. प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस आ रही थी, जो मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन नंबर 2 में थी, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय राइटिंग द करेक्ट टेम्परेचर्स. ये मैं एंड पे करूँगा. क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं. Underline the correct words या word in the sentences. Radiation is a particular way in which energy travels. Electricity नहीं, energy travels. Radiation needs या does not need a medium to be carried out. क्या हो सकता है? मैंने बताया था आपको स्पेस के अंदर भी रेडिएशन ट्रैवल करती है, so it does not need any material medium to travel. So radiation does not need a medium to be carried. Radiation can travel through space, solids नहीं. The earth is heated by the radiation from the moon या sun definitely. Clouds या star cut down some of the heat radiation reaching the earth. Clouds definitely. A white surface absorbs करती है या reflects करती है heat को. A black surface absorbs करती है definitely. Good absorbers of heat and radiation are bad emitters नहीं होते, good emitter ही होते हैं वो. Dull black surfaces are the best emitters of radiation. Best absorber नहीं, best emitters होगा. Shiny silvery surfaces are the best या worst absorbers of heat. Worst. Dull black surfaces are the best या worst emitters of radiation. Worst नहीं हो सकता. बेस्ट emitters of radiations होते हैं. एब्जॉर्बर भी बेस्ट होते हैं और emitter भी. शाइनी सिल्वरी surfaces are the best या worst emitter of radiations. worst emitters हैं रेडिएशन के. सो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. तो वो मैंने सॉल्व किया हुआ है. आई हैव टू रोटेट द कैमरा. मैं उस साइड पे करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2. हमने सबसे पहले तो आपकी, अगर आपके पास है करीब आपके वर्कशीट, तो आप काइंडली वो देख लें. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमने पहले देखना था तीनों के अंदर, फ़ारेनहीट के अंदर, सेल्सियस के अंदर और केल्विन के अंदर. अगर हम सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री के ऊपर जो है आइस मेल्ट कर जाती है. तो 0 डिग्री के अंदर आप 273 ऐड करें, जो कि आपके पेज के ऊपर फिनोमेना और आपके सारे वो जो हैं फार्मूलाज लिखे हुए हैं आपके चैप्टर के अंदर, उसके अंदर आप 273 ऐड करें तो आपका केल्विन में आ जाएगा. और उसी 0 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करें 9 और डिवाइडेड बाय 5 करें, और फिर आप प्लस उसके अंदर कर दें 32. तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 होता है, प्लस 32, तो 32 डिग्री फ़ारेनहीट आपका
आंसर आ जाएगा। ये वो डिग्रीज़ हैं, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहीट, इसके ऊपर आपकी आइस क्या करती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देन कम्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखें तो प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सेल्सियस के अंदर ये लिख लेंगे, आपके पास 3 टेबल्स हैं, तो सेल्सियस के ऊपर आप ये लिखेंगे, फिर 100 के अंदर 273 ऐड कर दें तो 373 आपका बन जाता है। तो ये क्या है आपका केल्विन के अंदर। और अगर इसको फ़ारेनहीट में करना हो तो आप सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर दें, 9 डिवाइडेड बाय 5 करें और 32 करें, तो ये 500 से कट के 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 180 प्लस 32 212 डिग्री फ़ारेनहीट। इसके ऊपर आपका क्या करता है, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या केल्विन में देखा जाए तो 373, अगर फ़ारेनहीट में देखा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री नॉर्मल। अब आपको जब ये बढ़ जाता है इससे टेम्परेचर, और आपको टेम्परेचर हो जाता है जिसको फीवर कहते हैं, हम बुखार कहते हैं, 37 डिग्री प्लस 273 अगर हम करें तो 310 डिग्री केल्विन। केल्विन के अंदर अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में देखा जाए तो 310 डिग्री होता है। अगर इसको फ़ारेनहीट में देखा जाए तो 37 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 इज़ इक्वल टू 98 पॉइंट। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें 39 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5, फिर उसके अंदर 32 प्लस कर दें तो आपके पास 98 डिग्री फ़ारेनहीट आ जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस क्या कौन सा टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर, बॉडी टेम्परेचर आपका अगर केल्विन में देखा जाए तो 310 डिग्री है, अगर फ़ारेनहीट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री। डैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सो आपका जो असाइनमेंट है, आप ये वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी जल्दी मुझे कॉपीज़ पे लिख के भेज दें। उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह मंडे को आपका इस चैप्टर का कंप्लीट का टेस्ट होगा, जो कि कल मैं आपको थॉरोली बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।